अच्छा, फॉर द पोलर फॉर्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर यू सी let z is equal to x plus iota y. This x is r of z, y is I of z. Consider a point xy in the plane that can also be expressed in terms of its polar coordinate. अब आप ये देखें कि हम क्योंकि ये x और y को प्लॉट कर रहे हैं, हम देखते हैं कि हम इसको पोलर कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में किस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं, r और थीटा. So using the following relations, now x can be written as r cos of theta, y can be written as r sin of theta. From these relations we may get x square is equal to r square cos square theta, y square is equal to r square sin square theta. When we add these two, x square plus y square, we will be getting r square cos square theta plus r square sin square theta. I have skipped one step. We can take r square common, cos square theta plus sin square theta will result in 1. So we have r square is equal to x square plus y square. Taking the square root, we get r equals to x square plus y square whole to the power half, and you see that this is same as of the modulus of z, which is equal to r of z square plus I of z square whole to the power half. इसका मतलब है कि जो r की वैल्यू है बिल्कुल सेम है as of modulus of z. ठीक है. Similarly, if we want to express theta in terms of आपके पास y और x है तो क्या होगा, r sin theta, we take the ratio r sin theta upon r cos theta, which is equal to y upon x. So theta r will be cancelled. You will get tan theta equals to y upon x. Theta is equal to tan inverse y upon x. It means that for any complex number z is equal to x plus iota y, how can we express it in polar form? We can write here r cos of theta plus iota sin of theta. ठीक है. Sometimes we get it like r c iota sin cis. ठीक है, इस तरह भी मिल जाएगा आपको. यूजुअली हम इसको इस तरह लिखते हैं अभी, लेकिन ये मैंने आपको एक मेथड बता दिया, विच इज़ कॉल्ड द पोलर फॉर्म ऑफ z. अगेन you see that r is equal to modulus of z and theta is equal to argument of z, which the vector z is making with the positive axis, and this is equal to tan inverse y upon x. ठीक है, ये इसकी वैल्यू है किसकी, आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू है किसके बराबर, tan इनवर्स y अपॉन x के इक्वल. ठीक है. now I can explain this with the help of one example. How to find modulus of z, how to find argument of z, and how to express a complex number in polar form. The answer of one is that in order to find modulus of z, we simply write x square, means again I am saying r of z square, यानी जो रियल पार्ट है वो, प्लस इमेजिनरी पार्ट विदाउट आयोटा स्क्वायर होल टू द पावर हाफ, और ये आपके पास क्या होगा, नॉन नेगेटिव नंबर होगा. अब फॉर द सेकंड पार्ट और द थर्ड पार्ट आप कंसिडर कर लें, एक ये टेबल कंसिडर कर लेते हैं हम. टू फाइंड आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस z, कंसिडर द फॉलोइंग फार्मूला. ठीक है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, हम ये एक जो है टेबल देखते हैं कि किस तरह हमने इसकी फॉर्मुलेशन की हुई है. वी ऑल आर फैमिलियर विद द 4 क्वाड्रेंट्स इन जो हमारे पास प्लेन है, एक्स वाई प्लेन. फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है. ठीक है. अब आप देखें कि आपको मालूम है, एवरी वन ऑफ यू इज़ फैमिलियर विद the signs of x and y. In the first quadrant we have x and y both positive. In the second quadrant x is negative, y is positive. Third quadrant both are negative. In the fourth quadrant x is positive but y is negative. ठीक है. How would we calculate this argument of z? Argument of z will be simply r tan y upon x. ठीक है, यानी जो हमने थीटा की वैल्यू निकाली है वही होगा सिंपली आपके पास. ठीक है. जब आपका सेकंड क्वाड्रेंट होगा तो ये होगा पाई प्लस दिस क्वांटिटी, और जब ये आपके पास होगा थर्ड क्वाड्रेंट तो ये होगा माइनस पाई प्लस आपके पास जो है tan इनवर्स y अपॉन एक्स, यानी आर्ग्यूमेंट ऑफ z. और जब आपके पास ये फोर्थ क्वाड्रेंट होगा तो ये आपके पास क्या होगा, ये होगा सिंपली r tan ऑफ y ऑफ x. ठीक है, ये आपके पास वैल्यू होगी इसकी. और ये आपके पास आर्ग्यूमेंट ऑफ z की वैल्यू आप यहाँ से फाइंड करेंगे, कैपिटल आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस
2k पाई। ये यहाँ पे हमने आर्ग्यूमेंट ऑफ z लिखा है, स्मॉल आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस फॉर्मूले से फाइंड होगा। फर्दर यहाँ पे मैंने जो क्वाड्रेंट है इनकी ये डिफ़ाइन कर दिया है कि ये इन दोनों में आपको मालूम है फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या है, पॉजिटिव हैं। यहाँ पे जो सेकंड क्वाड्रेंट है इसमें आपका ये साइन थीटा जो है पॉजिटिव है, लेकिन कॉस थीटा क्या है, नेगेटिव है। जब साइन थीटा कॉस थीटा दोनों पॉजिटिव होंगे तो थीटा की जो वैल्यू आपके पास होगी, यानी जो आर्ग्यूमेंट tan इनवर्स फाई अपॉन एक्स जो आप लिखते हैं वो क्या होगी, आपने लिख ली ए होगी वो, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में क्या हो जाएगी आपके पास, थीटा की वैल्यू पाई माइनस ए हो जाएगी, ठीक है। इस क्वाड्रेंट में वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, माइनस पाई प्लस ए होगी, जिसमें कि दोनों साइन और कॉस दोनों नेगेटिव होते हैं। इसमें साइन नेगेटिव है, कॉस पॉजिटिव है, तो इसमें होगी थीटा की वैल्यू आपकी माइनस ए, ठीक है। सो कीपिंग इन माइंड ऑल दिस इंफॉर्मेशन वी प्रोसीड टू सॉल्व फॉर एन एग्जाम्पल, ठीक है। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं, आसान सा कुछ समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर z इज़ इक्वल टू माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 माइनस 2i आयोटा। पहला काम क्या करना है, प्लॉट करना है इसको। दूसरा काम क्या करना है, ये फाइंड करना है आपको। ये मैंने यहाँ पे मॉडुलस लगा दिया, मॉडुलस हटा लीजिएगा, सिर्फ आर्ग्यूमेंट ऑफ z होगा। फाइंड ये मॉडुलस ऑफ z एंड आर्ग्यूमेंट ऑफ z और एक्सप्रेस z इन पोलर फॉर्म। अच्छा, पहली चीज़ जो प्लॉट करनी थी वो आप देखें, ज़ाहिर है कि अंदाजे से मैंने इसको प्लॉट किया हुआ है। दोनों नेगेटिव हैं, ये आपके पास दोनों नेगेटिव हैं, इसका मतलब है दोनों आपके पास कहाँ आ जाएंगे, ये थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। ये थर्ड क्वाड्रेंट में होंगे, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 हो गया ए की जगह पे, और बी की जगह पे आपने लिख दिया इसको -2 हो गया। ये आपके पास यकीनन यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। ये जो इसका जो मैग्नीट्यूड होगा ये रिप्रेजेंट कर रहा होगा किसको, मॉडुलस ऑफ z को रिप्रेजेंट करेगा। एंड व्हाट इज़ इट्स वैल्यू, ये हम फाइंड कर लेते हैं। मॉडुलस ऑफ z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, मॉडुलस ऑफ दिस, यानी कौन सा पार्ट है आपका, ये है रियल पार्ट, माइनस कौन सा आ जाएगा आपके पास, इमेजिनरी पार्ट। और इस मॉडुलस को रिमूव करेंगे तो ये स्क्वायर आ जाएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 12 होल स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा आपके पास, ये माइनस क्या आ गया आपके पास, ये -2 स्क्वायर। अब ये देखें कि ये 12 हो गया और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। 12 + 4 16 हो गया, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आ गई 4, यानी मॉडुलस ऑफ z की वैल्यू आ गई आपके पास 4। साइन थीटा की वैल्यू निकाल लें तो ये हो जाएगी -12। कॉस थीटा की वैल्यू निकाली तो आपके पास आ गई -स्क्वायर रूट ऑफ 3/2। अब रिस्पेक्टिव अगर आप कैलकुलेटर से आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू निकालें, अगर आप चाहें तो आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे निकाल सकते हैं इसको, कैसे, आप टेंजेंट थीटा भी निकाल सकते हैं, ठीक है ना, tan थीटा की फॉर्म में भी निकाल सकते हैं इसको। ये क्या हो जाएगा आपके पास, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, वहाँ से भी निकाल सकते हैं इनको सिंप्लीफाई करने के बाद, ठीक है। अच्छा, बहरहाल आप यहाँ पे आपके पास जो वैल्यू है इसकी, यहाँ से भी निकाल सकते हैं दोनों की वैल्यू आप, ठीक है। वो जब आप इसका इस फॉर्म में भी निकाल सकते हैं, थीटा की वैल्यू यहाँ पे रख दें आप। ये साइन थीटा की वैल्यू इतनी आ गई, -12 आ गई, इसकी वैल्यू -स्क्वायर रूट ऑफ 3/2 आ गई आपके पास वैल्यू। थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, आर्क टेंजेंट हो जाएगी, तो वो आपके पास वैल्यू कितनी आ रही है इसकी, π/6 आ रही है इसकी वैल्यू, ठीक है। π/6 इसकी वैल्यू आ रही है, तो ये आपने ले ली। यहाँ पे साइन तो ज़ाहिर है इसका वैसे भी माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। अच्छा, लेकिन जो साइन और कॉस के दोनों साइन है तो ये तो आपके पास क्या है, नेगेटिव हैं। तो ये हमें मालूम है कि ये कहाँ पे लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। अब आप देखें कि ये क्या हो जाएगा, -π + थीटा। थीटा क्या है आपके पास, थीटा की वैल्यू है आपके पास π/6 जो कि हमने कैलकुलेट की है। तो ये आपके पास आ गई -π + π/6, सो दिस विल गिव यू -5 π/6। हैंस द पोलर फॉर्म इज़ गिवन बाय z इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगी आपके पास 4, ठीक है, r cos ऑफ थीटा, ये आपके पास क्या आ गया, -5 π/6 प्लस आयोटा साइन -5 π/6, ठीक है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये सब लोगों को समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो दोबारा से इसको प्ले करके देख लीजिएगा, आसान है। और मैं जब पेपर ये पोलार्ड की बुक की जो है मैं जो है कुछ पेजेस और अपलोड कर दूँगी, वो देख लीजिएगा, उसमें भी एग्जाम्पल डिस्कस हुई है, वहाँ से आप उसको देख लीजिएगा मज़ीद। फिर जो हमने एक्सरसाइज 1 थी उसमें से मैंने आपको कुछ मार्क्स, मैंने कहा था क्वेश्चंस मैं टिक कर दूँगी जो आप सॉल्व कर लीजिएगा अपने प्रैक्टिस के लिए। ये सारे 1.1 से ये मैंने बता दिए सारे क्वेश्चंस ये वाले, ठीक है। और ये आप फिर ये प्लॉट भी करवा दिया मैंने, डिस्टेंस भी निकलवा लिया है ये, ठीक है। पोलर फॉर्म के लिए भी दे दिए सवाल आपको मैंने,
प्लस मैंने आपके लिए एक और पेपर जो है ये बनाया था, जो कुछ प्रॉपर्टीज़ हमने डिस्कस की थी, वहाँ पे इनकी कॉन्जुगेट की प्रॉपर्टीज़ या क्वोशंट वाली वो मैंने यहाँ पे जो है वो डिस्क्राइब कर दी है प्रॉपर्टीज़, वो आप इनको देख लीजिएगा। ये पेपर भी मैं अपलोड कर दूँगी, ये आप लोग काम कर लीजिएगा, ठीक है। और जैसे मैंने आपको बता दिया कि मैंने एक असाइनमेंट जो है वो भी अपलोड कर रही हूँ, वो सब आप देख लीजिएगा इनको। कोई और मुश्किल अगर प्रॉब्लम हो रही हो तो फिर मुझे जो है आप उसको जो है स्ट्रीम पे, गूगल क्लासरूम में स्ट्रीम पे आप इसको मुझे लिख के बता दीजिएगा, ताकि फिर मैं डिस्कस कर लूँ। वैसे भी अब तो यूनिवर्सिटी खुल जाएगी, तो आप लोग मुझसे आके पूछ भी सकते हैं क्लास में, ठीक है। ओके।